Welcome everyone. I hope you guys are good. My name is Nadia और आज हम लोग बात करेंगे financial independence पे. I've been reading your comments on last two of my videos and you guys have been sharing your feedback and very interesting comments that I came across and I really want to share with you. But right now specifically we're going to talk about financial independence and because it's a very important topic and this is something that I really love to talk about as well. And your comments, inshallah, we're gonna read them. We're gonna, talk about them in the next video. Thank you very much for watching my videos as well, because I used to think that it takes around 1 week or so to reach 500 views. Will be काफी अरसे के बाद like 500 views, and I was like, okay, 500 views होंगे तो फिर I'll make another video. But now you guys have started watching videos so fast, get 500 views I'm having like in one day. So now my target is if it's 1,000, then I'm gonna make another video. So here I am. We are going to talk about money, and this is something that we as a society we don't really want to talk about it. कि कैसे कमाएं, save up कैसे करें, और the serious talk, the talk that matters about money, we don't like to talk about it. और हाँ, पैसा ज़रूरी है, पैसा तुम्हारे पास भी होना चाहिए, उसके पास भी होना चाहिए, and all these things. But the thing is कि to talk about it, नहीं, we don't want to talk about it. So first we're going to talk about the term financial independence. I remember back in 2010 I started hearing about this term, this concept कि जब लोगों ने सोचना ये शुरू किया कि भाई बूढ़े होकर रिटायर क्यों होना है, हमारी ज़िंदगी हमने सारी ज़िंदगी क्यों काम करना है, why not we just move fast and save up money and then 40s में अपने रिटायर हो जाएं. यही बात अरशद ने मुझे की थी जब ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं थी. The only thing that he used to tell me was कि मैंने बस 40 साल की उम्र तक काम करना है, मैंने बस जितना, क्योंकि he was working 18 hours a day, he was working like a madman. So he was like कि बस इतनी मेहनत जितनी I'm young तब तक मैंने काम करना है, उसके बाद I'll rest. So I'll tell you the story, rest की story भी I'll tell you. So फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बेसिकली मकसद ये है कि आप अपनी 20s में, 30s में या मिड 30s तक आप काम करें और बहुत ज़्यादा काम करें, जो काम मिलता है वो करें, या अपने आप को बहुत अच्छा करियर ढूंढ के बहुत अच्छा काम करें, बहुत दिल लगा के बहुत फोकस्ड होकर काम करें, और उसके बाद और इसके साथ साथ आप सेविंग्स भी करें ताकि आप अपनी रिटायर्ड लाइफ, जो कि आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, उसको आप सस्टेन भी कर सकें. इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली. I've seen a lot of videos on these fire movements and everything. So in my videos, I only talk about my own experiences, the things that I have done in my life, or the things that I have experienced working for me, and the crude kind of advice that I can give you. सबसे पहली बात, perhaps I'm going to oversimplify it because this is a very, for me also, though it's a very interesting sort of a topic for me, but it is also a very difficult topic for me to deliver. तो सबसे पहली बात, अगर तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, चाहे आप, आई वुड से कि आप कोई सी भी एज में अभी फॉल करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 10 years आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अगर आप कोई क्विक फिक्स वाले लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई वांट इट इन लाइक 5 years और जस्ट लाइक 2 years, कोई ऐसा काम, बहन को ऐसा काम बताते हैं, बाजी ऑनलाइन काम, नो, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम गोना टॉक अबाउट. इफ दिस इज समथिंग दैट यू हैव इन माइंड, तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू. ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, तो आई एम गोना टेल दिस टू यू पॉइंट ब्लैंक इन द बिगिनिंग. ठीक है. नाउ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आप चाहते हैं and you want to start from a humble background, like if you are starting from a background where you don't have a back, you don't have any strong support, and if you are starting from zero, the ideal is always you are happy, you're good. अभी भी अगर आप जीरो पे होते हैं तो you're okay, you're fine, कुछ नहीं बिगड़ा. लेकिन नेगेटिव से स्टार्ट करना, that is the biggest hurdle. और
नेगेटिव से हम ऐसे स्टार्ट करते हैं जब हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन्स होते हैं, या फिर हम कोई भी घर की चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, या कोई भी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं. दीज आर द थिंग्स विच आर एक्चुअली not recommended. I mean, if I am talking about financial independence, that I would say these are the things which are not really recommended. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सफ़र बहुत बोरिंग सफ़र है ये. इसमें शायद एक्साइटमेंट उन लोगों के लिए होती है, कम लोगों के लिए होती है. There are some people who like to save up money. There are some people who like to live below their means. There are some people who are low maintenance. तो वो उनके लिए it is an exciting journey. But for those people जिनको लग रहा है कि यार if I'm saving up here, if I'm not using money, और या what I'm earning, यार अगर मैं जॉब करता हूँ, मैं 20 दिन अगर जा रहा हूँ, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, तो यार मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ. जैसे ही मेरी पे आती है तो वो मैं उसको अपने पे इस्तेमाल करूँ, जैसे majority of our youth started thinking about it. ठीक है, तो now just think about now, and tomorrow की तो खैर है, tomorrow देखी जाएगी. So हम ये बात कर रहे थे कि the journey of financial independence is a very boring journey. And sometimes it's a very lonely journey as well. आप अकेले हो जाते हैं because you are not participating in activities which are taking up your energy and your money. Because trust me, money is energy. And this is very boring journey for those people who love to live in the moment, who love to, have, flashy lifestyle, like to go out, and they say that they want to maintain, good relationships. मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम शादियों में नहीं जाएंगे तो कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाएंगे. So these are the things, and if these are your priorities, then आपके लिए financial independence would be a hard thing. And financial independence की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको पता है कि यार we are the only ones जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को स्टेबल करना है. Because there are so many other ways जहाँ पे हम shortcuts ढूंढते हैं. If you are a girl, you may be looking for somebody कि यार अगला पैसे वाला हो तो my future is secure. I don't say this is something wrong to do. Everybody has different ways to be financially independent, but we are specifically talking about a girl or a boy जो कि खुद से अपने बलबूते पे they want to get stable for their whole life. Because this is very important. If you don't have any back, if you don't have any support, and if you don't have any shortcuts like that, I'm not saying that it's just these are just girls who are looking for wealthy men to marry. There are boys who are also looking for wealthy women to marry. तो इन शॉर्टकट्स की हम बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं और उनको पता है कि ना तो हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी में कोई इनहेरिटेंस में हमें को बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी, या हमें हमारा ऐसा कोई जैकपॉट लग जाएगा, शादी वगैरह, ये सारी चीज़ें उससे हट के हम लोग बात करें. इफ़ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत मेजॉरिटी जो लोग सोचते हैं वो ज़्यादातर कपल्स ही होते हैं, और इफ़ दे बोथ आर ऑन द सेम पेज तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. इससे बड़ी बात ही कोई नहीं होती कि अगर आप दोनों इस चीज़ को समझ रहे हैं. क्योंकि मेरा मानना ये है कि यू कैन नॉट, दिस इज़ अ वेरी हार्ड जर्नी. ये कोई 1-2 महीने 1-2 साल की बात नहीं है. इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. एंड हम इसको फैंटेसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ समथिंग. बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस एंड आई नो कि आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ लाइक एक बड़ी सारी सड़क है और जिसमें आपने चलना है और रास्ते पे Arshad was the one who had been motivating me all the time, और I was the one जो कि एक बच्चा रास्ते में रुक के तो फिर लेटलियाँ लेने लग जाता है कि भाई यार मुझसे नहीं जाया जाएगा, मेरे से नहीं होगा. And he'd be like, नहीं, थोड़ा सा you have to be more
conscious, be more careful about things like that. So that is one thing. It is not everyone's क्या कहते हैं, हर किसी का काम नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो इस चीज़ को, क्योंकि शॉपिंग फॉर सम पीपल इज़ काइंड ऑफ एडिक्शन. हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादातर हम कहते हैं अगर एंटरटेनिंग कोई चीज़ हमें चाहिए तो कहते हैं यार चलो मॉल चलते हैं, चलो शॉपिंग करने चलते हैं. और अगर आप 4-5 बंदों को लेके मॉल पे चले गए, आपने बस विंडो शॉपिंग ही किया, आपने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से, सिर्फ खाने पीने में आपका अंदर जाने बाहर आने में इतना खर्चा लग जाएगा कि तकरीबन 4-5 हज़ार आपके लग जाते हैं. तो कीपिंग दैट इन माइंड, और ये कि यू हैव टू फाइंड ऑल्टरनेट वेज फॉर एवरीथिंग एंड यू हैव टू थिंक अबाउट थिंग्स कि यार अगर मैंने काम करना है तो मैं इसका ऑल्टरनेट क्या है. अगर मैंने किसी शादी अटेंड करनी है तो मेरे पास कपड़े नहीं हैं तो मैं उसका ऑल्टरनेट क्या ढूंढूंगा. ठीक है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स ये जहाँ पे आपको बहुत सारा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. और सेविंग थिंग्स, आप कितने सेव कर लिए, कहाँ पे सेव करूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ. फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड बिकॉज देयर आर सो मेनी स्कैम्स आर रैम्पेंट इन पाकिस्तान. लोग तो ढूंढते हैं कि कौन इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको तो लोग सूंघ लेते हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट का बैंड बजाते हैं उसकी जाके. सो दे आर थिंग्स एंड सो लोग फिर इसलिए भी कहते हैं कि यार फिर क्या फ़ायदा, अगर इससे बेहतर है कि हम बस खाएं पिएं ऐश करें और इसकी लाइफ एंजॉय करें और जस्ट मूव ऑन. सो दिस थिंग इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहली चीज़, we perhaps are going to have these financial independence videos in chunks as well, क्योंकि this is not something that I can tell you in a short video कि आप again there is no set rule कि आपने ABCD follow कर लिया तो आप you be financially independent. सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, it's a boring thing, it's a thing जहाँ पे आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इस बोरिंग को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं. इस बोरिंग को इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ करके, ऐसी जगह ढूंढ के जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के लिए अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, खुद जा सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा. यू कैन बी वेरी क्लोज टू नेचर और यू कैन डू, आप कहीं जाके वॉल्टियर कर सकते हैं, आप अपना टाइम अच्छी जगहों पे गुजार सकते हैं जहाँ पे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती. दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये एक बहुत मेहनत तलब काम है, तो यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट 2 to 3 इनकम स्ट्रीम्स. अगर आपको लगेगा कि यार जो काम मैं अभी कर रहा हूँ उसमें मैं अगर बचत नहीं कर पा रहा, पहले तो आप उसको कट डाउन करने की कोशिश करेंगे कि यार मैं अपने एक्सपेंस किस तरह से कट डाउन करूँ. आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि बीबी आप तो यहाँ पे महंगाई इतनी है, बिल्स इतने अप्स एंड डाउन होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अपना बजट किस तरह से मेंटेन करना है. और इसके बाद किराए हर साल किराया बढ़ा होता है, तो जितना मैं कमा रहा हूँ उसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सेव. अगर ऐसा है तो यू हैव टू फाइंड सम स्किल. इफ़ यू आर इन द एज जहाँ पे आप एनर्जेटिक हैं, रोबस्ट हैं, यू गो हैड फाइंड योर सेल्फ अ न्यू स्किल. कोई नया काम सीखें और उसके बाद उससे एक सेकंड स्ट्रीम जनरेट करने की कोशिश करें. थिंक अबाउट थिंग्स दैट यू कैन डू टू अर्न ऑन टॉप ऑफ दैट एंड ऑल्सो मेक श्योर, जिस तरह मैंने आपसे एक वीडियो में पहले कहा था कि जब आप अपनी औरतों को पावर देते हैं, जब आप उनको सिखाते हैं, उनको एक शऊर देते हैं कि बाहर दुनिया जिसको मैं फेस करके आ रहा हूँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं उसके साथ कि मैं बाहर गया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चीज़ें बाहर हो रही हैं, बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर के बारे में आप उसको बताते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं, पैसा किस तरह से कमाया जाता है, या आप उसको ये वट एवर शी हैज़ लर्नड फ्रॉम हर पास्ट, आप देखते हैं कि उसने क्या चीज़, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है या किस चीज़ में वो अच्छी है, और आप उसको इनकरेज करते हैं. तो एंड यू मेक हर she's your partner in everything, and you make her conscious of the money which is coming to the house, and if you make it
एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं आप अपनी तरफ से और उसको अनेबल करते हैं, उसको एम्पावर करते हैं, तो शी कैन डू अ लॉट। इसके बाद लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी है, इफ़ यू आर हैविंग किड्स, अगर आपके बच्चे हैं इस वक्त और 7 साल की एज से छोटे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि देन यू स्टे एट होम। अगर घर रह के आप कुछ कर पाती हो, दैट इज़ सुपर्ब। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं यार अभी दिस इज़ अ वेरी हार्ड थिंग टू डू, कि आपने अभी आपके पास टाइम है, इसमें आपने पैसा कमा के सेव अप करना है, या आपने अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है, वो भी आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और इस तरफ भी आपने ध्यान देना है। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। आपको अपने आई थिंक कि आपको अपने 20 से लेके 40 साल के दरमियान जो वक्त है उसको बहुत तरीके से हैंडल करना चाहिए। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ नॉट समथिंग जो कि मैं आपको शायद अल्फाज में बता सकूं। पैसे क्यों, आई थिंक people don't talk about it because it's a very hard subject to talk about, and the thing is कि it is multi-dimensional। आप अपनी इनकम स्ट्रीम्स को इन्हांस करते हैं, उसके बाद आपने अपनी जो अखराजात हैं उसको कंट्रोल करना है, उसके बाद पैरेलल में आपके पास जो बचत होती है उसको आपने सेव अप करना है, उसको इन्वेस्ट करना है किसी चीज़ के अंदर। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन पैरेलल। उसके लिए आपको इन सब चीज़ों के लिए किसी में सब्र चाहिए, किसी में मेहनत चाहिए, किसी में आपको बहुत सारी रिसर्च चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी रिसर्च चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे एक ही जगह से पूछना नहीं है, आपको बहुत सारी जगहों से पूछना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी सोसाइटी बेस्ट रहेगी, कौन सी जगह ऐसी है जो कि, अगर आप माई सेल्फ इफ़ यू आस्क मी, तो आई लाइक टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे इस वक्त प्राइस अच्छी नहीं है, या वो मुझे बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अभी मिल रही है, लेकिन आई नो आई कैन वेट टिल 10 years, आई कैन लीव दैम फॉर 10 years। तो 10 years इज़ मैक्सिमम, मेरे दिमाग में होता है कि दिस इज़ आई एम गोना लीव इट। आई एम नॉट थिंकिंग कि यार ये अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई की है, ये अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो 2 साल में आप लाइक इसकी क्या कीमत हुई, इसका क्या बना। That's not, this is investment is going to take, it's something that is a game of patience. ठीक है, I am not into stocks and things like that. I've mentioned it earlier as well, but I'm learning about stocks. I have a very good friend and he gave me a lot of advice, and I'm learning about it, and anything that I'm going to know about these new things, new kind of investments, I'll share with you as well. I don't believe in investing in Sona, in gold. People be like, oh my god, what have you said? Sorry. मुझे ये जो people say कि हाँ, if you have things like these, so you can put it in bank के locker में रखवा दो, things like that. I don't believe in anything. I just believe in having less and less material sort of things. I like some very tangible assets, which are like land or things. Just land is the only thing that I like. So that's the thing. लेकिन हमने उस तक कैसे पहुंचना है? The problem is कि it is going to take you some very small steps, some very regular small steps that you have to take in order to reach to your first destination. Let me tell you one thing. I wasn't like that. I had no idea how this life should be spent, or what kind of things that you have to follow in order to stay financially afloat. I was not that wise, or I was not very capable to do that perhaps. बहुत छोटी छोटी बातों से बात स्टार्ट हुई थी। बातें ये स्टार्ट हुई थी कि अरशद ने कहा कि मैं 40s तक मैं काम करूँगा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ मैं बस 40s तक करूँगा। And one other thing that he said was कि अपना घर बनाना है, but that's it. अपना घर बनाना है जब we had nothing, we had no saving, we had
we were just like hand to mouth, and I remember हम लोग he used to ask me कि चलो बैठो बाइक पे बिठा के हम फिरते थे डिफरेंट जगहों पे, एंड यूज्ड टू टेल मी कि यार यहाँ पे इतने का प्लॉट मिलता है, हम यहाँ पे प्लॉट ले लें हम वहाँ पे प्लॉट ले लें। आई यूज्ड टू थिंक यार इतने लाख का प्लॉट मिलता है, या अभी करोड़ों तक बात नहीं गई थी क्योंकि अब तो बात ही करोड़ों से शुरू हो रही है, तो लाइक यहाँ पे इतने लाख का प्लॉट मिलता है, ये जगह तुम्हें आज ऐसी लग रही है, ये कल कला को ऐसी हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, हम जिस जिस जगह से जिन जिन सड़कों से गुजरे हैं, एनी प्लेस दैट ही सेड कि आज तुम्हें वीरान लग रही है, ये मैं आपको आज से कोई 15 साल पहले की बात बता रही हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू द स्टोरी जब हम वापडा टाउन से आगे, क्योंकि हमने बैरिया ऑर्चर्ड में घर लिया था, और वहाँ तक जाते जाते अपनी किस्त जमा कराने देने जाते जाते हमारी बस हो जाती थी बाइक पे, सड़कें टूटी फूटी थी, बुरे हालात थे। और लेकिन आई रिमेंबर वन थिंग कि वी ऑलवेज सेव्ड अप। यहाँ से मैंने ये सीखा, ऑलवेज सेव्ड अप। हमारे पास सेविंग्स हमेशा से होती थी। जब इस घर की हमें अपॉर्चुनिटी मिली, एंड माय फादर सेड कि दुकान है, अगर तुम लोग उस पर घर बना के रह लो, तो इसको घर बनाने में हमें तकरीबन 3 लाख रुपए लगे। तो वो दैट मनी वाज सेव्ड विद मी, वी हैड दैट मनी। अगर वो ना होते पैसे तो वी डिड नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो द सेम थिंग, जब ऑर्चर्ड की मिल रहा था तो डाउन पेमेंट वाज समथिंग दैट वी हैड सेव्ड अप। इतने ही पैसे हमारे बैंक में थे उस वक्त, एंड दैट वाज समथिंग कि हम जाते जाते, जब हमें पहली दफ़ा पता चला कि यहाँ वहाँ पे आप ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे घर, तो जाते 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 यहाँ से लाहौर से, मेन लाहौर से जाते, यानी कि टाउनशिप से जाते जाते हमारी हम कहते थे कब आएगी कब आएगी, और हम रास्ते में कहते थे कि नहीं यार ये तो बहुत दूर है, हम नहीं कर सकते ये काम, तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पे। तो लेकिन हमने 4 साल या 5 साल की किस्तें दी, वेट किया, एंड आफ्टर 10 years that place is like grew 8 times. तो I like to invest in places जहाँ पे आपको थोड़ी सी hints मिल रही होती हैं कि these are the places which will grow. There are places जहाँ पे 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल के बाद कोई changes नहीं आती. So you have to be very very clever about these things and have to do your research, and that's one thing. So यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट रही वो यही रही कि बातें जिस तरह, जो कि शायद मैं आपको सिर्फ ये बता सकूँ कि ये कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोई हम नहीं देखा हुआ था, अर्शद ने ना सुना था कुछ, बट ही हैड दैट थिंग इन माइंड कि यार 40 तक जितनी मेरे अंदर हिम्मत है, मेरे अंदर जितनी ताकत है, आई वॉन्ट टू स्पेंड इट ऑन माई वर्क, एंड आई नो ही हैज़ वर्क 18 hours and he worked like crazy. So एंड क्या कहते हैं उसको, मैंने भी साथ काम किया, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ, he never forced me to, he never pressurized me to. Even today he has no say in कि यार मैं काम करूँ ना करूँ, if it gets out of control and I get very tired, he's like you can leave it. So लेकिन एक नुकसान ही होता है, अगर आप दो मियाँ बीवी हैं और एक बंदा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो यू फील लाइक यार इफ ही कैन डू दैट आई कैन डू, मेरा काम तो इस बंदे काम के आगे तो पीस ऑफ केक है। तो दिस इज़ समथिंग दैट कीप्स मी मोटिवेटेड एज वेल, एंड आई थिंक यार अगर मैं ये काम नहीं कर रही होंगी तो मैं क्या कर रही होंगी, आई बी वेस्टिंग माई टाइम। सो आई जस्ट नाउ आई कॉल दिस फ्रीडम financial freedom, because I am working when I don't need to work. So इसके अलावा the kind of things जो कि as I told you guys कि financial independence is not something which is I can deliver to you in one video. It is something that you can see in all of my videos, जहाँ पे हम simplicity की बात करते हैं, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि यार you don't have to. I've seen that कि जब वो 10 साल आप एक पी काट लेते हैं, जो कि
जब आप काट रहे होते हैं उस वक्त आपको बहुत मुश्किल लगती है, आप बहुत अकेले हो जाते हैं, आपको समटाइम्स लगता है यार मैं किस मुसीबत में पड़ गया, यार लोग ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ ये वो. लेकिन द काइंड ऑफ पावर you feel after you have that uh, that accomplishment, so that's another level. So the thing is you see, you guys have noticed my lifestyle as well, where I always talk about you have to live below your means. Even जब आप living below your means, saving up, researching all the time, being very vigilant about every penny that you are spending, एक टाइम ऐसा आता है जब ये सारी चीज़ें आप अचीव कर लेते हैं जो आपके गोल्स होते हैं. प्लस एक और बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आई एम गोइंग रियली फास्ट अबाउट थिंग्स. जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो एटलीस्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने ईयर्स को, जो मैं अपने पास्ट को स्किप करके आपको बता रही हूँ. तो the moment we built our house, the moment we had built our house, जब, हाँ, एक और बात भी कहूँगी मैं आपसे. बहुत सारे अब लोग ये बात करते हैं, you don't have to build your house or this and that, it's okay, you can रेंट पे रहना ज़्यादा इकोनॉमिकल है, तो घर अगर आप बना लो तो ये. मैं आपसे कहूँगी अगर आप एक कमरा भी बना पाए ना, make sure you have your own house. It gives you a sense of security. I don't know, perhaps every person is different, lekin it gives you a sense of belonging and security. I know I'm a person who does not like to attach myself to things and the possessions that I have, but I don't know, there's some psychological effect or something. It gives you a peace of mind. That is all you need. Okay? That is all you need. So no matter कोई सा भी, I like the kind of houses जहाँ पे दीवारों पे सिर्फ वाइट सीमेंट हुआ और नीचे जो, जैसा मेरा पहला घर था कि उसको ज़्यादा आसान है साफ़ करना, उसको मेंटेन रखना ज़्यादा आसान है, और जो सीमेंट का फर्श था, एंड सिंपल पुरसकून, आप उसको बहुत प्यारा सजा सकते हैं, बहुत अर्दी सा लुक दे सकते हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू गो extravagant about the house that you want to buy, but at least have छत on your head. That gives you peace, of sense of security. So after that I would say कि the moment we had that house, the moment we completed that house, और जो हमारी habits बनी हुई थी, we got the chance to buy this house as well. And trust me, क्योंकि हम अपना सारा पैसा वहाँ लगा चुके थे, we had not much money left in our bank, but still Arshad said कि I think you like this house a lot, so ask your uncle if he can sell it to you. So then we made a plan. वो टाइम था जब, एक और बात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि we all work as a team. अगर हमारे 2 बच्चे भी हैं, उस वक्त मादी तो बहुत छोटी थी, लेकिन मनाहिल को काफ़ी जो है ना सेंस है, तो she had been a part of our whole journey, and we tell her कि this is something that we have to do, and then they also work as a team. और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें कट करनी पड़ेंगी, जो हम यूजुअल के एक्सपेंसेस कर सकते हैं, थोड़ा सा फैंसी हो सकते हैं, वो सब हमें ख़त्म करना पड़ेगा for 3-4 months. तो they always say yes, okay, we'll do that. So ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि आप सब एक ही पेज पे हों और आप सब मिल के एक गोल की तरफ जाएं, एक गोल को अचीव करना चाहें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता. So with that, अपने इनकम स्ट्रीम्स ज़्यादा रखें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, सेविंग्स पे ध्यान दें, और बहुत सटल किस्म की सेविंग्स. यू शुड नॉट बी हैविंग क्रेडिट कार्ड्स एट ऑल. एंड again, I have no experience in stocks, and I don't like to कमेटियाँ डालने का भी मुझे कोई ना तजर्बा है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है. तो these are the things that I've been following. अगर आप शायद 2020 से मेरे चैनल को देख रहे हैं. So I've been finding so much joy in simplicity, and I started gardening when I was in COVID.
तो आई फाइंड सो मच फन देयर एज वेल। वहाँ पे भी कैसे कम से कम पैसों में मैंने अपनी गार्डनिंग करनी है। इवन टुडे एज वेल मैं अभी भी पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करती, इसलिए नहीं कि जैसे लोग कहते हैं कि तुमने जमा कर करके मर जाना है, कबर में ले जाना है, बट दिस इज़ नॉट माई थिंग। इट्स जस्ट दैट आई एम ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट माई स्पेंडिंग एंड आई ऑलवेज सेट माई सेल्फ some huge goals. Abhi bhi, I have a very big goal for myself for future, and I'm very excited about it as well. So anytime I get some money from anywhere, I'm like, yeah, this is even that's like 1,000 rupees. Jahan my goal is very big, 1,000 rupees is nothing in front of that goal. But I always say, this is going towards my goal. So yeah, or the going towards our goal. So yeah, with that thing, there are some very क्या कहते हैं आप उसको, बड़ी बड़ी बातें मैंने आपके साथ जो शेयर की हैं, मोटी मोटी बातें जिसको कहते हैं। एंड इंशाल्लाह we're gonna talk more about this thing, and I totally agree कि this is not something that everyone can do, और हर इंसान के circumstances different होते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी points, कुछ छोटी छोटी बातें जो along this whole journey मैंने सीखी, जो मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें से अगर कोई एक दो चीज़ को अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और अगर आपको उससे कोई फ़ायदा हो पाता है, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर, there is nothing better for me than this. Thank you very much for listening to me, and you guys have a great day. Bye. मेरा सूप ठंडा हो गया है।